अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल का न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मरकज से बीजेपी इख्तिदार का खात्मा जरूरी, मोदी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए। CM KCR का नारा, कहा बीजेपी हुकूमत के खात्मे से ही तेलंगाना और पूरे मुल्क के हालात होंगे बेहतर। अपने एक गुस्ताखाना वीडियो से शहर के फजा को खराब करने वाले राजा सिंह को दोबारा किया गया गिरफ्तार, लगाया गया PD एक्ट। मेडिकल चेकअप के बाद चरलापल्ली जेल भेजा गया, 1 साल की हो सकती है जेल। बीजेपी MLA की जानिब से किए गए गुस्ताखाना रिमार्क्स नाकाबिले बर्दाश्त, सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर के मौजूदा हालात को बेहतर करने के लिए हैदराबाद पुलिस ने अवाम और मीडिया से मांगा ताउन, हालात को खराब करने वाली खबरों से परहेज करने की मीडिया से की अपील। मौलाना जाफर पाशा आकिल हुसामी ने DCP साउथ जोन P साई चैतन्या से की मुलाकात, मुस्लिम नौजवानों को घरों से गिरफ्तार करने के वाक़े की मजम्मत की। और जमीयत उलमा आदिलाबाद की कामयाब नुमाइंदगी पर आदिलाबाद वन टाउन PS में राजा सिंह के खिलाफ एक और केस हुआ दर्ज। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मरकज़ की मोदी हुकूमत पर तनकीदी हमले जारी हैं। आज रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट का इफ्तिताह करने के बाद CM KCR ने वहां मुनक्कदा ओपन हाउस में खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने फिर एक मरतबा बीजेपी को मरकज से बेदखल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाना चाहिए, तभी न सिर्फ तेलंगाना बल्कि पूरे मुल्क में बेहतरी आएगी। आइए जानते हैं CM KCR ने मजीद क्या कहा। రంగారెడ్డి జిల్లాలో రోడ్ ఫేసింగ్ లో 2 ఎకరాల రైతు పెద్ద కోటీశ్వరుడు. ఆ పరిస్థితి ఉండానా? ఈ మత పిచ్చిల పడి దాన్ని డిస్టర్బ్ చేసుకోవన్నా? కొంతమంది పనికి మాలిన వాళ్ళు వాళ్ళ చిల్లర రాజకీయాల కోసం, నీచ రాజకీయ ఎత్తుగడల కోసం మతం మంటలు పెడితే రాష్ట్రాన్ని అల్లకల్లోలం చేస్తే మనం చూస్తూ ఊరుకోవన్నా? దయచేసి మీరు అందరూ ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఓట్ల కోసం, చిల్లర రాజకీయాల కోసం దేశాన్ని, భారత సొసైటీనే మోసపెట్టేటువంటి ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఒక మాట మీరు ఆలోచన చేయండి. ఎందుకు ఈ గడబడి చేస్తున్నది బీజేపీ? ఇలా ఎందుకు ఆగమాగమవుతున్నాడు నరేంద్ర మోడీ? ఏం కావాలి ఆయనకు? ఉన్న పదవి చాలదా? ప్రధానమంత్రి పదవి అంతకన్నా పెద్ద పదవి ఏమైనా ఉన్నదా? ఇప్పుడు ఎన్నికలు లేవు కదా. ఏం జరుగుతూ ఉంది? బీహార్లో ఏం జరుగుతూ ఉంది? ఢిల్లీలో ఏం జరుగుతూ ఉంది? బెంగాల్లో ఏం జరుగుతూ ఉంది? మన తెలంగాణలో ఎటువంటి కారు కూతలు కూస్తూ ఉన్నారు? దయచేసి ఆలోచన చేయండి. 8 ఏళ్ల నుంచి మన దగ్గర కఠినంగా వ్యవహారం చేసి సీమ చిట్టుక్కు మంటలేదు. ప్రశాంతంగా ఉన్న తెలంగాణ సమాజం, హైదరాబాద్ నగరం, మన మొత్తం రాష్ట్రమంతా కూడా అద్భుతమైనటువంటి బ్రహ్మాండమైనటువంటి ప్రశాంత వాతావరణంలో అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంది. మన తలసరి ఆదాయం పెరిగింది, మన GSDP పెరిగింది, మన వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు పెరిగినాయి, మంచినీళ్ళ సదుపాయం వచ్చింది, కరెంటు సదుపాయం వచ్చింది. ఇవాళ ఇంత మంచి కలెక్టరేట్ బిల్డింగులు కట్టుకుంటా ఉన్నాం. రాష్ట్రాన్ని 33 జిల్లాలు చేసుకున్నాం. మరి ఈ దుర్మార్గులు, ఈ చిల్లరగాళ్ళు, ఈ మత పిచ్చిగాళ్ళు ఈరోజు ఏం చేస్తా ఉన్నారు? దయచేసి ఆలోచన చేయండి. ఎటువంటి దుర్మార్గమైన పద్ధతులు చేస్తా ఉన్నారో మీరు ఆలోచన చేయండి. నేను ఒక్కటే మాట మనవి చేస్తా ఉన్నా. నేను బ్రతికి ఉండంగా, నా కంఠంలో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఆగం కానియేను. దీన్ని కాపాడడానికి నా సర్వశక్తులు కూడా నేను ధారపోస్తాను. ఇంకా అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ముందుకు పోతూనే ఉంటాం. నాకున్న బలగం మీరే ప్రజలే అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. మీ అండదండలు, మీ ఆశీర్వచనం ఉన్నంత వరకు బ్రహ్మాండంగా ఇంకా ముందుకు దూసుకొని పోదాం. బ్రహ్మాండమైన పంటలు తెచ్చుకుందాం. వికారాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జిల్లాలు కొంత హైదరాబాద్ నగరంలో శివారు చుట్టూ ఉండేటువంటి మున్సిపల్ కొత్తగా ఏర్పడ్డ కార్పొరేషన్లతో शदीद एहतजाज के बाद आखिरकार पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वाले बीजेपी से मुअत्तल MLA राजा सिंह को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। राजा सिंह की दोबारा गिरफ्तारी के बाद हैदराबाद समेत तेलंगाना में पुलिस हाई अलर्ट पर है। मजीद तफसीलात के मुताबिक राजा सिंह के खिलाफ PD एक्ट दर्ज करते हुए गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां मेडिकल चेकअप किया गया और फिर बीजेपी सस्पेंडेड MLA को चरलापल्ली जेल मुंतकिल कर लिया गया।
104 मुख्तलिफ केसेस का सामना करने वाले राजा सिंह पर तवील अरसे जेल में उसे गुजारना पड़ सकता है। इस दौरान गिरफ्तारी से कबल भी अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए राजा सिंह ने समाज में नफरत को बढ़ावा देने वाला एक और वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में राजा सिंह ने तेलंगाना हुकूमत पर जहां संगीन इल्ज़ाम लगाए, वहीं अपनी जानिब से की गई गुस्ताखाना हरकत को मजहबी रंग देने की कोशिश की और अपनी गिरफ्तारी को धर्म युद्ध यानी मजहबी जंग करार दिया। अभी मुझे सूचना मिली है कि आज या नहीं तो शाम में या नहीं तो अर्ली मॉर्निंग पुराने केसों को जोड़कर मुझे अरेस्ट कर सकती है पुलिस, क्योंकि कल मुख्यमंत्री कार्यालय में मीटिंग हुई और मुख्यमंत्री जी को भी अभी ईगो आ गया कि किसी भी हालत में राजा सिंह को जेल में डाला जाए, या तड़ीपार किया जाए या पीडीआर डालकर उसको जेल में रखा जाए, ऐसी योजना चल रही है बोलकर मुझे इंटीमेशन आया। तो मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा, ना हम गोली से डरते हैं, ना हम फांसी से डरते हैं और ना ही हम जेल से डरते हैं। धर्म युद्ध है, कोई हमारे भगवान को गाली दे ये हमें बर्दाश्त नहीं, और जो धर्म को ललकारेगा, जिस भाषा में वो समझेगा, उस भाषा में राजा सिंह नहीं भारत का हर वो हिंदू, हर वो दुश्मन को जवाब देगा। इससे कबल गोशामहल से बीजेपी से मुअत्तल किए गए एमएलए राजा सिंह को हैदराबाद की शाह इनायतगंज पुलिस ने CRPC 41 के तहत नोटिस दिए थे। बता दें कि पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने के बाद बीजेपी एमएलए को मंगलहाट पुलिस ने CRPC 41 रूल के तहत नोटिस दिए बगैर ही गिरफ्तार किया था और यही इसी वजह से अदालत से उसे फौरी तौर पर जमानत भी दे दी गई थी। बता दें कि मुंतखब अवामी नुमाइंदे को CRPC 41 के तहत गिरफ्तारी से पहले नोटिस जारी की जाती है। नोटिस के बगैर गिरफ्तार किए जाने को ही वजह बनाते हुए राजा सिंह के वकीलों ने जमानत हासिल की थी। काबिल जिक्र ये भी है कि पीर के बाद से अब तक राजा सिंह के खिलाफ हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस में 8 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी एमएलए की जानिब से किए गए गुस्ताखाना रिमार्क्स को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। देखिए, 22 अगस्त को जो बीजेपी और बीजेपी के एमएलए ने जो वीडियो जारी करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के ख़िलाफ़ अपनी नफ़रत का इजहार किया है, वो इससे आज सब लोग को दिली और क़ल्बी रूहानी तकलीफ़ पहुंच रही है। अगर असदुद्दीन ओवैसी अगर आज मुसलमान है तो इसलिए मुसलमान हूँ क्योंकि मैं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की वजह से मैं मुसलमान हूँ, और इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा दिल है, और आप इस तरह का वीडियो जारी करके जो आपको मालूम आपकी डेलिबरेट कोशिश थी है कि तकलीफ़ पहुँचाई जाए, एक माहौल पैदा किया जाए, और इससे भाजपा बीजेपी और इस एमएलए की इस्लाम और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़रत का खुला इजहार होता है। 22 अगस्त का वीडियो जारी क्यों किया गया भाई? कुछ वजह थी। जारी इसलिए किया गया कि नफ़रत का इजहार हो, और आने वाले दिनों में जो शहर में गणेश का त्यौहार मनाया जाता है और फिर उसके बाद माह रब्बिल अव्वल में मिलाद शरीफ के जुलूस निकलते हैं, जलसे होते हैं, उन सबको मकदर किया जाए, ख़राब किया जाए। ये इनकी साजिश है, इनकी कोशिश है। देखिए, एहतजाज हम करते रहेंगे जब तक कि इस बीजेपी के एमएलए को जेल नहीं भिजाया जाएगा। हम फिर से अपील कर रहे हैं कि तशद्दुद शहर में, तेलंगाना में ना हो। अगर तशद्दुद नहीं होगा तो बीजेपी और आरएसएस की इसमें नाकामी होगी। अगर तशद्दुद होगा तो खुदा ना खास्ता वो कामयाब हो जाएंगे। तशद्दुद को नहीं होना चाहिए। एहतजाज ज़रूरी है। एहतजाज में गिरफ्तारी का मुतालबा जायज़ मुतालबा है, मगर एहतजाज में तशद्दुद को उकसाने की बातें हरगिज़ मत करिए और बीजेपी और संघ परिवार को नाकाम करिए। बीजेपी एमएलए की जानिब से दिए गए गुस्ताखाना बयान के बाद शहर हैदराबाद की पुरअमन फिजा मुकद्दर हो गई है। हालात पुरअमन बनाने के लिए हैदराबाद पुलिस एक्शन में है। कल रात खुद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने पुराने शहर का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया था। बातज़ा एडिशनल पुलिस कमिश्नर DS चौहान IPS ने आज मीडिया से खुसूसी बात की। उन्होंने कहा कि शहर के हालात को पुरअमन बनाने के लिए उन्हें मीडिया के ताउन की ज़रूरत है। इसके लिए उन्होंने मीडिया से गुजारिश की कि शहर के हालात ख़राब करने के जिम्मेदार खबरों से परहेज़ करें।
हमको जो 99.9% हमारे लॉ अबाइडिंग सिटीजन है इस मुश्किल वक्त में भी कितने सब्र से और कितने अमन और सुकून से काम कर रहे हैं उसकी तरफ फोकस करना चाहिए। ये वक्त थोड़ा सा समझने का है और इसमें मीडिया की हमको खास तौर से ताउन चाहिए। ताउन ये चाहिए कि जब पुलिस और हमारी सरकार इतना कोशिश करके जो अमन सुकून इतने समय से हासिल हुआ है, जिसकी वजह से हैदराबाद की तरक्की, यहाँ का अमन सुकून जो है वो पूरे मुल्क में नहीं दुनिया में फेमस है, दुनिया में जाना जाता है उसके लिए। तो उसकी हम सबकी जिम्मेदारी, कलेक्टिव जिम्मेदारी बनती है कि उसको कायम रखने में हमारी मदद करें। तो मैं इस मौके पर आपके ज़रिए पब्लिक से भी, हैदराबाद के शहरियों से भी, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने काम किया है। और मीडिया के अपने फ्रेंड से मैं खास तौर से अपील करना चाहता हूँ कि आप जो भी कुछ कवर करते हैं, जो भी कुछ दिखाते हैं, उसका मकसद उस अमन और सुकून को कायम रखना होना चाहिए, ना कि उसमें किसी किस्म का रोड़ा पैदा करें। क्योंकि अगर सब लोग मिलकर काम नहीं करेंगे, सब लोग साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, तो नुकसान हैदराबाद शहर का, यहाँ के शहरियों का, हमारे यूथ का होगा। तो ये बात बताने के लिए मैंने आप सब लोगों को यहाँ पर बुलाया है। और अगर कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये कोई प्रेस मीट नहीं थी, मैं सिर्फ आपको बातचीत करने के लिए बुलाया गया था। अब मेरी आप सब लोगों से अपील है, अगर आप लोग कैमरा बंद करके बैठ जाएँ तो मैं एक कप चाय के साथ में आपसे गुफ्तगू करूँगा। No, I can't give you the details as of now. ठीक है, we are taking all precautions, we are taking all measures to maintain the peace and tranquility of the city, and it is being maintained. And lot of efforts are going from the government, from the police. हमारे CP साहब भी कल यहाँ पे आपको पता ही है, पूरे रात पर तमाम फिरके गए हैं। So once again let me clarify, the purpose was something else. So please आप मेरी 2 मिनट बात सुन लीजिए, उसके बाद अगर कुछ शक्को शुबा बसता है तो मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है, आप प्लीज बिल्कुल पीसफुल है, आप बिल्कुल पीसफुल है। अब आप लोग वही मैं कह रहा हूँ, आप प्लीज, मैं तीसरी बार मैं चौथी बार आपसे अपील कर रहा हूँ, आप लोग बैठ जाइए, मेरी बात सुनिए। मौलाना जाफर पाशा आकिल हुसामी ने आज पुरानी हवेली में DCP साउथ जोन पी साई चैतन्या से उनके ऑफिस पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मौलाना जाफर पाशा ने मुस्लिम नौजवानों को घरों से गिरफ्तार करने की वाक़यात की मजम्मत की। साथ ही उन्होंने एहतजाजी नौजवानों के खिलाफ इंतहाई कार्रवाई से गुरेज करने की भी अपील की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस बारे में मज़ीद तफसीलात बताई। हमारे प्यारे रसूल से हमको मोहब्बत है, मगर हम मोहब्बत का इजहार जिस अंदाज से करना चाहिए करिए, मगर मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे रसूल के उम्मतियों पे कोई डंडे बरसाए, मेरे रसूल के चाहने वालों पे कोई डंडे बरसाए। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि पुरअमन अंदाज में जो भी अमल करे, किसी को तकलीफ़ ना दे, किसी गैर मुस्लिम भाई को तकलीफ़ ना दे, बल्कि अपने रब को पुकारे, अपने रब से दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी ज़रूर मदद फरमाएगा। देखिए, हम अभी एक क़ानूनी बात जहाँ तक है, जो वीडियो वायरल हुआ और जो वीडियो पे हमारी पुलिस ने जो दीगर मुक़ामात की है, जिस केसेस को उसने बुक किया, वो ऐसा मालूम होता है कि पुलिस के और हमारे मौजूदा जो जिसके ऊपर मलून के ऊपर मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसके ऐसे मिले जुले ताल्लुकात है, जिसकी वजह से केस ऐसा बुक किया गया जो कोई काम का नहीं है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि कोई सख्त एक्शन ले और उसके ऊपर कोई ऐसे PDF डाले ताकि आइंदा ये हालात शहर के ख़राब ना हो सके। ये देखिए, नोटिसों का खेल तो पुराना है। आप इसके अगर पूरी फाइल खोलेंगे तो 70 केस हैं उसके ऊपर, तो आप कब तक केसों को आप ये नज़रअंदाज करेंगे? एक केस में ऐसा करिए कि आप उसको पूरे केसों से नसीहत मिल जाए। बहुत तकलीफ़ में बच्चे बेचारे, बहुत उनके ऊपर लाठियों से मारा गया। दो बच्चों को तो मैं सुना कि हाफिज़ कुरान है बच्चा हो, और उसको जो ज़ख्म आए हैं वो हमारे को देखकर हमारे आंख पे कांटे आ रहे हैं, और बस हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। और पुलिस जुल्म के ख़िलाफ़ हम वहाँ जो भी अमल हुआ है उसकी मजम्मत करते हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। बीजेपी से मुअत्तल किए गए एमएलए राजा सिंह की गिरफ्तारी से कबल ऑल इंडिया इमाम व मुअज़्ज़िन कौंसिल और यूथ फोरम सिटी एंड मदरसा की जानिब से मस्जिद आलिया से सिटी पुलिस कमिश्नर ऑफिस बशीर बाग तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शामिल शुरका ने हाथों में कौमी परचम थाम कर राजा सिंह के गुस्ताखाना रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की थी। कोई ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, ये पब्लिक प्रोटेस्ट के अंदर हम एहतजाज करने के लिए आए। मैं मोहम्मद वलीउल्लाह ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल तेलंगाना। ये आज जो 2 दिन पहले दो दिन से जो प्रोटेस्ट चल रहा है और कुछ दिन पहले राजा सिंह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, उम्महातुल मोमिनीन की शान में गुस्ताखी करता है और इसी तरीके से नूपुर शर्मा गुस्ताखी करती है, तो उस सिलसिले में पूरे मुल्क के अंदर एक माहौल को ख़राब करने और ये अमन के गद्दार जो है मुल्क को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रीपेड प्लानिंग के साथ मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहे हैं। और यहीं पर ये ख़त्म नहीं है, बल्कि पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं तो वहाँ पर जाकर के बच्चों को घरों में से निकाल करके पुलिस जुल्म कर रही है। इस पुलिस के खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। ये एहतजाज यहाँ पे ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि जो शाहीन बाग बैठे थे वो एनआरसी के लिए बैठे थे, लेकिन अभी जो मामला है एनआरसी से और संगीन मामला है। हम इस मामले को और आगे तक लेकर जाएंगे और इस सिलसिले में तमाम दूसरी तंजीमों से भी राब्ते में रखेंगे। हैदराबाद में एक पब्लिक प्रोटेस्ट को आगे लेकर के जाएंगे, क्योंकि जो शाहीन बाग और एनआरसी के टाइम पर प्रोटेस्ट हुआ था, वो प्रोटेस्ट से भी ज़्यादा इंशाअल्लाह हम आगे बहुत मजबूती के साथ प्रोटेस्ट करेंगे, जब तक कि जो है राजा सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता और उसको पेटी एक्ट के तहत तो जो है उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता, जब तक कि जो है इसको अनक्वालिफाइड नहीं किया जाता असेंबली से। हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे। आप ये मत समझिए कि हमारा पहला प्रोटेस्ट है, आगे और हम आगे जारी रखेंगे। ये बहुत सारे तंजीमें इसके अंदर है। मेरा नाम मोहम्मद वलीउल्लाह ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल तेलंगाना। जगतियाल सदर मजलिस यूनुस नदीम ने राजा सिंह की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी की शदीद मजम्मत करते हुए भरोसा जाहिर किया कि रियासती हुकूमत और पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। जुमे के दिन अभी फिलवक्त कोई रैली नहीं निकाली जा रही है, क्योंकि पुलिस की जानिब से भी हमको यहाँ पर परमिशन नहीं दिया गया है। सीआई साहब ने भी फ़ोन करके बताया कि इस वक्त शहर जगतियाल में परमिशन किसी भी रैली को नहीं दिया जा रहा है। और हमको जो फ़िरक़ा परस्त ताकत है तेलंगाना के अंदर जो माहौल ख़राब करना चाह रही हैं, तो हम मैं तमाम मुसलमानों को और तमाम अवाम से ये मुतालिबा करता हूँ कि हम इस रियासत के अंदर अमन को क़ायम करने के लिए हमसे जो हो सकता हम इसको गंगा जमुना तहज़ीब को क़ायम करने के लिए हम कोशिश करेंगे। और हम शुरू से ये तेलंगाना जो रियासत है शुरू से अमन व शांति का गहवारा है, और हम यहाँ पर अमन के माहौल को बरकरार रखने के लिए हम लोग बराबर हमारी कम्युनिटी की जानिब से, हमारी पार्टी की जानिब से हम बराबर ताउन करेंगे। और जो फ़िरक़ा परस्त ताकतें यहाँ का माहौल ख़राब करना चाहती हैं, हम उनको बता देना चाहते हैं कि तेलंगाना के अंदर तेलंगाना के अवाम तुम्हारे नापाक अज़ाइम को समझ चुकी है और तुम्हारे नापाक जो इरादे हैं उसको समझ चुकी है। आदिलाबाद जमीयत उलमा हिंद की महकमा पुलिस से कामयाब नुमाइंदगी पर राजा सिंह के खिलाफ 1 टाउन पुलिस स्टेशन आदिलाबाद में IPC की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इन ख्यालात का इजहार जमीयत उलमा हिंद टाउन सदर आदिलाबाद मौलाना मोहम्मद असलम नहदी ने मसूद चौक पर वाक़े जमीयत के दफ्तर पर मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों से बात करते हुए किया। ऐसे अल्फाज न कहें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, किसी को दिल में तकलीफ़ हो। और ख़ुसूसन रियासत से जो चीफ मिनिस्टर है, रियासती हुकूमत से जमीयत उलमा यह दरख्वास्त करती है कि अपनी असम्बली में एक ऐसा कानून बनाए कि कोई शख्स, न मुसलमान न हिंदू, कोई शख्स भी किसी उसके बुज़ुर्गों के लिए या उसके देवी देवताओं के लिए या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शान में गुस्ताखी करे, ये इसकी इजाज़त से मुकम्मल तौर पर मना कर दिया जाए और सख्त से सख्त सज़ा का क़ानून बनाया जाए, ताकि हर कोई जो है सो उस चीज़ से बात करने से पहले 1000 बार सोच ले और वो एहतियात करने वाले बने। हम आदिलाबाद पुलिस के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारी इस दरख्वास्त को कबूल किया और उस शख्स के सिलसिले में जो FIR है उसे फौरी दर्ज करते हुए जो है सो उसे इसके ऊपर FIR दर्ज कर ली गई। और मुसलमानान आदिलाबाद से हमारी दरख्वास्त है कि हम जो प्रोटेस्ट वगैरह किया करते हैं उसकी वजह ये है कि उसके ख़िलाफ़ कोई FIR हो। अल्हम्दुलिल्लाह आदिलाबाद में FIR हो चुकी है और सभी से हम दरख्वास्त करते हैं कि हम ऐसे प्रोटेस्ट वगैरह से अब एहतियात करें,
ताकि किसी और को जो है उससे कोई तकलीफ़ ना हो, कोई हमारे जो नौजवान किसी तकलीफ़ में मुब्तला ना हो, कोई परेशानियों में मुब्तला ना हो। जो काम मकसद था वो मकसद अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो चुका है और दरख्वास्त है कि कोई ऐसा जो है सो माहौल न बनाए इंशाअल्लाह। भैंसा शहर की मस्जिद पंजे शाह इंतज़ामी कमेटी की जानिब से राजा सिंह के गुस्ताखाना तबसरों के खिलाफ पुलिस स्टेशन पहुंचकर एडिशनल एसपी किरण खरे, आईपीएस और आरडीओ दफ्तर पहुंचकर आरडीओ लोकेश्वर राव से मुलाकात की और राजा सिंह के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने और पीडी एक्ट नाफिज करने का इससे पहले मुतालबा किया था। हालांकि इसी एक्ट के तहत राजा सिंह को गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल उन्होंने अपना शदीद गम व गुस्से का इजहार भी किया है। बार बार गुस्ताखी की जा रही है और मुसलमानों को इश्तियाल दिलाया जा रहा है, जिस पर हम बरहम हैं, शदीद गम गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। लिहाजा हमारी हुकूमत हिंद से मुतालबा है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और नफ़रत का जो माहौल सियासी मफादात हासिल करने के लिए किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए कि सारी दुनिया हमारे नबी के अखलाक को जानती है, आपके किरदार को जानती है। हमारे इस मुल्क में बिरादरान वतन की एक बड़ी तादाद भी आपको दिलो जान से चाहती है, जिससे पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों के अंदर गम गुस्से का एक इजहार है और लोग बड़े बेचैन हैं, तशवीश में मुब्तला हैं कि एक मुजरिम सारी दुनिया के सामने अपने जुर्म का इकरार कर रहा है और हुकूमत है कि उसको फूलों के जैसा मेहमान बना कर ले जाती है और उसको छोड़ देती है, जिससे मज़ीद मुसलमानों के अंदर इश्तियाल पैदा हो रहा है। हमारी गुजारिश है हुकूमत हिंद से, रियासती हुकूमत से, कि इस मलऊन के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। अमन व अमान की बरकरारी और शहरियान ज़हीराबाद में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए आज ज़िला संगारेड्डी के एसपी रामन्ना कुमार की हिदायत पर ज़हीराबाद मुस्तक़िल में कौमी शाहराह 65 से होते हुए शहर में रैपिड एक्शन फोर्स ने मुकामी पुलिस दस्तों के साथ फ्लैग मार्च किया। ज़हीराबाद डीएसपी वी राघव ने इस मार्च की क़यादत की। टाउन CI भूपती, सब इंस्पेक्टर के श्रीकांत व दीगर पुलिस अमले ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। डीएसपी ज़हीराबाद ने मीडिया को बताया कि फ्लैग मार्च का मकसद अनकरीब मुनक़्क़द होने वाले गणेश त्यौहार के अलावा अमन व अमान को और सलामती को यकीनी बनाना है, लोगों की जान व माल की हिफाजत करना, आईन हिंद की हिफाजत को आम करना और आवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। नेज़ आवाम को ये बताना भी है कि पुलिस हमेशा उनके साथ है। 99 ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ వాళ్ళు ఎస్పీ గారి ఆదేశాల ప్రకారము జహీరాబాద్ వచ్చినారు. వీళ్ళంతా ఒక టోటల్ 60 మెంబర్స్ వచ్చారు. అడిషనల్ ఎస్పీ, డిఎస్పీ, ఇంకా సిబ్బంది అంతా అందరితో కలిసి ఈరోజు మనం జహీరాబాద్ పట్టణంలో వివిధ వీధుల్లో మార్చ్ చేయడం జరిగింది. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే రాబోయే రోజుల్లో మనకు గణేష్ చతుర్థి ఇంకా ఇతర పండుగలు ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని ఉద్దేశించి ప్రజల్లో మనోధైర్యాన్ని పెంచి ఎటువంటి సంఘటనలు కాకుండా మేమున్నామని తెలియజేయడం కోసం ఈరోజు ఈ ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్తోని జహీరాబాద్ పట్టణంలో ఫ్లాగ్ మార్చ్ చేయడం జరిగింది. దీనికి మన ఎస్పీ గారు ఈరోజు మనకు జహీరాబాద్ పంపడం జరిగింది ఈ ఫోర్స్ అంతా. काकतिया यूनिवर्सिटी के 22वें कॉन्वोकेशन तकरीब रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन की ज़ेर सदारत मुनक़्क़द की गई। इसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड हुकूमत हिंद के सेक्रेटरी आचार्य संदीप वर्मा ने शिरकत की। वाइस चांसलर डॉक्टर टी रमेश और दीगर अमले ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर 56 PhD और 276 गोल्ड मेडल्स अता किए गए। गवर्नर ने अपने खिताब में सेहत की बरकरारी के लिए एहतियात बरतने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज की नई नस्ल आम ग़िज़ा को तरजीह देने के बजाय फास्ट फूड्स को तरजीह दे रही है, जिससे हमारी सेहत मुतासर हो रही है। When we were medical students, we used to expect the vaccination from other countries, and he must be knowing. Rubella vaccine reached us. Vaccine reached India after so many years, which was used by the Western countries. But at the earliest, with the dedication of our scientists and the guidance of our Honorable Prime Minister, and I reminded of our Honorable Prime Minister visit
motivate the scientists so that we could get the vaccination at the earliest. And because of this, we have won the corona only because of vaccine, that too an indigenous vaccine. तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर टी हरीश राव ने आज यहाँ कहा कि पब्लिक हेल्थ के सभी सेक्टर्स में 8 साल की अनोखी पहल और कड़ी मेहनत से तेलंगाना के लिए कई यादगार नतायज सामने आए हैं। राजेंद्र नगर में इंडियन इंस्टीट्यूट पब्लिक हेल्थ के नए ब्लॉक का इनॉग्रेशन करते हुए हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पब्लिक हेल्थ के लिए वक्फ इदारों की हिमायत करने की अहमियत को महसूस किया। उन्होंने कहा कि कोविड वबा ने सभी को पब्लिक हेल्थ की अहमियत का एहसास कराया है। हैदराबाद के इलाके अमीरपेट में ग्रीन पार्क होटल में फोटोग्राफी का आलमी दिन मनाया गया। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए बेहतरीन फोटोग्राफरों को एजाज से नवाजा। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, एफडीसी के चेयरमैन अनिल कुमार, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार, प्रेस एकेडमी के चेयरमैन अलम नारायण भी मौजूद थे। पार्क में बच्चे देखे के बाद उनके पेरेंट्स भी देख रहे सिनेमा, वो घर में वो హాట్ స్టార్ నెట్ఫ్లిక్స్ దాంట్లో పెట్టుకొని వాళ్ళు కూడా చూసారు. అట్లా కూడా ఒక్కసారి మన దేశ స్వాతంత్రం కోసం జరిగినటువంటి పరిణామాలు, బట్ పిల్లలు మాత్రం వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. థియేటర్లో ఆ సినిమా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు కూడా చాలా డిసిప్లిన్తోనే ఆ సినిమాని ఎంజాయ్ చేశారు. ఆ సినిమా గురించి తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం జరిగింది. కాబట్టి దానికి సహకరించినటువంటి తెలుగు ఫిలిం ఛాంబర్, తెలంగాణ ఫిలిం ఛాంబర్, అదేవిధంగా క్యూబ్ వాళ్ళు మన వాళ్ళకు కూడా రేపు 11 o'clock సన్మానం చేస్తున్నాం. కాబట్టి చీఫ్ సెక్రటరీ గారిని కూడా మీరు రావాలని చెప్పి ఇన్వైట్ చేస్తా ఉన్నాం. पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अगर कोई सोशल मीडिया पर मुतनाज़ सरगर्मियां अंजाम दे रहा है तो इस शख्स का पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पासपोर्ट दरख्वास्त गुजारों के लिए एक बड़ी खबर आई है। अगर आप पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं तो ये बात आपको बता दें कि आपके तालीमी सर्टिफिकेट्स, शिनाख्ती कार्ड्स की जांच और फिर पुलिस वेरिफिकेशन के अलावा एक नई चीज़ इन मराहिल में शामिल की गई। जी हाँ, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सैयद ने बताया कि पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त देने वालों की सोशल मीडिया सरगर्मियां भी खंगाली जाएगी। आपके सोशल मीडिया पर अगर मुल्क से गद्दारी का कोई भी पोस्ट पाया गया तो आपका पासपोर्ट जारी नहीं होगा। So as I said in the morning, we had discussions with the chief secretary. One of the things what we talked about is the ways and means of streamlining the various public services. And also find out how we are in a position to facilitate legal migration from the state. That means those who are going abroad for work, how we can streamline the services for them, find opportunities for them. So this is the broad objective for this state outreach program or the Videsh Sampark. As part of this morning we had discussions in the secretariat with the Chief Secretary Somesh Kumar and his team and all the other officials. Last evening, once arrived, we inspected also the T-Migrate, the T-App, migration app, and also the help desk which was done and the software which has been launched. And the discussion was whether we could integrate this with कल सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से पुराने शहर हैदराबाद में नौजवानों को घरों से मारते पीटते निकालने का वीडियो खूब वायरल हुआ है और इन वीडियोस में सिक्योरिटी एहलकारों को एक भयानक चेहरा आवाम के सामने आया है। दूसरी जानिब हैदराबाद पुलिस का एक इमदादी चेहरा और रवैया भी दिखाई दिया, जहां चंद्रायन गुट्टा इंस्पेक्टर प्रसाद वर्मा ने हमदर्दी की मिसाल कायम की। दरअसल काला पत्थर के रहने वाले 60 साल ज़ईफ शख्स मोहम्मद हाफिज अपने औलादों की बेरुखी के बाद चंद्रायन गुट्टा ब्रिज के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे थे। सोशल वर्कर सफिया माही व दिगर की जानिब से तवज्जो दिलाने के बाद इंस्पेक्टर प्रसाद वर्मा ने फौरी ज़ईफ मोहम्मद हाफिज के पास पहुंचकर उन्हें नहलाया, उन्हें नए कपड़े पहनाया और उनकी मिजाज पुरसी की। बातज़ां ज़ईफ मोहम्मद हाफिज को मेलार देवपल्ली लिमिट्स में वाक़ शफीउल्लाह ओल्ड एज होम में दाखिल कराया गया। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर।
मरकज से बीजेपी इख्तिदार का खात्मा जरूरी, मोदी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए। सीएम केसीआर का नारा, कहा बीजेपी हुकूमत के खात्मे से ही तेलंगाना और पूरे मुल्क के हालात होंगे बेहतर। अपने एक गुस्ताखाना वीडियो से शहर के फजा को खराब करने वाले राजा सिंह को दोबारा किया गया गिरफ्तार, लगाया गया पीडी एक्ट, मेडिकल चेकअप के बाद चरलापल्ली जेल भेजा गया, 1 साल की हो सकती है जेल। बीजेपी एमएलए की जानिब से किए गए गुस्ताखाना रिमार्क्स नाकाबिले बर्दाश्त, सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर के मौजूदा हालात को बेहतर करने के लिए हैदराबाद पुलिस ने अवाम और मीडिया से मांगा ताउन, हालात को खराब करने वाली खबरों से परहेज करने की मीडिया से की अपील। मौलाना जाफर पाशा आकिल हुसामी ने डीसीपी साउथ जोन पी साई चैतन्या से की मुलाकात, मुस्लिम नौजवानों को घरों से गिरफ्तार करने के वाक़े की मजम्मत की। और जमीयत उलमा आदिलाबाद की कामयाब नुमाइंदगी पर आदिलाबाद वन टाउन पीएस में राजा सिंह के खिलाफ एक और केस हुआ दर्ज। न्यूज़ बुलेटिन में ये थी अब तक की अहम खबरें। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।